Hello guys, welcome to my YouTube channel Exam Spartan. So today we are going to discuss situation of women in ancient, medieval and modern. Video is in two part and this is first part. In this video we will discuss important aspects of women's contribution in society. So let's begin. So Indian culture would represent all classes and communities in India have combined to make Indian way of life. We trace importance of culture on women's development naturally to take resource recourse to historical process. If we take pre-Hindu society and examine the culture of मोहनजोदड़ो and हड़प्पन civilizations, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं एंशंट से, तो सबसे पहले प्री हिंदू सोसाइटी और मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन को एग्जामिन करेंगे. Through the study of archaeological remains of this period, it appears that women held a dignified position in society. So archaeological से जो पता चला है कि जो वुमेन है उनकी जो पोजीशन थी वो डिग्निफाइड थी, अच्छी खासी थी. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द वे स्टैंड of sculpture possesses like earlier Mohenjo-daro dancing girl who is confident and self-contained rather than a timid प्रोडक्ट ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन. तो जो डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदड़ो में, उससे पता चलता है कि जो जो डांसिंग गर्ल है वो कॉन्फिडेंट और सेल्फ कंटेनेड है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी सप्रेशन और रिप्रेशन नहीं था वुमेंस का. तो द टाउन प्लानिंग कॉन्सेप्ट enunciated by Harappan culture also shows a satisfactory and comfortable domestic architecture, which means that the woman who controlled the hearth was intended to live comfort along with her family. Till about 7th to 8th century AD, India was almost entirely a product of Hindu culture and civilization. तो जो सातवीं से आठवीं सदी तक है, हिंदू जो है पूरा प्रोडक्ट था हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन का. इट इज़ देयर फॉर नेचुरल हिंदूज थॉट्स रिचुअल्स एंड कस्टम्स डिटरमाइन द पोजीशन वुमेन इन आवर सोसाइटी. तो वही हिंदू कल्चर ने डिसाइड करा है जो पोजीशन और जो भी कस्टम से वुमेन को लेकर सोसाइटी में. आफ्टर द आर्यन एंट्री इनटू इंडिया, द पोजीशन ऑफ वुमेन इज enunciated in Vedic literature itself. We find that some most important earlier divinities in Vedic culture, women like उषा और दवन. तो जो आर्यन की एंट्री हुई थी, जो आर्य आए थे, तो उनमें जो डिवाइन वुमेन थी जो उनको भगवान की तरफ पूछा जाता था, जैसे उषा और दवन. इन दी पुरानिक पीरियड मैन हैड रियलाइज मोस्ट ऑफ हिज इम्पोर्टेंट गोल्स बाय पेइंग obeisance to female divinities. The goal of achieving prosperity for some, the most important aim of life was to achieve through Lakshmi, the goddess of prosperity and consort of Vishnu. The divinity responsible for imparting knowledge was Saraswati. Similarly, the destroyer of evil, neuter of God, was Durga, the consort of Shiva. The role of woman as fertility goddess and the gives of birth man emerged very earlier in Indian culture. तो जो दुर्गा है वो कॉन्सर्ट ऑफ शिवा मानी गई है, और वुमेन के जो रोल था वो फर्टिलिटी गोडेस की तरह माना गया है, जो कि जन्म देती है किसी भी आदमी को, जो कि बहुत पहले इंडियन कल्चर में सब बताया गया. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति which become male and female elements creation with women representing creating through their शक्ति. तो जो पुरुषा और प्रकृति है ये मेल और फीमेल बनाया गया है their शक्ति. So also epitomized a high position of women. Most gods in Indian mythology had wives who were also worshipped, an important indicator of women's position in society, whether
द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इज़ वेलकम एंड इन द सोसाइटी। तो जो बहुत सारे इंडिकेटर हैं इंडियन मैथोलॉजी में जिसमें जो वुमेन की पोजीशन है जो कि जन्मदाता मानी गई है, तो उसमें वेलकम किया गया है जो कि गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती है उसको। हाउएवर द ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द अर्थवेदा प्रिस्क्राइब charms and rituals to ensure the birth of a son in preference of that of daughter। तो जो अर्थवेद है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि और रिचुअल क्या है कि इंश्योर द बर्थ ऑफ सन इन प्रेफरेंस दैट ऑफ डॉटर। तो प्रेफरेंस किसको इसमें दी हुई है, इसमें सन्स को पहले प्रेफरेंस दी है सन को, और डॉटर को प्रेफरेंस कम दी गई है किसमें, अर्थवेद में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देयर इज हाउएवर एविडेंस टू शो that birth of a daughter was not cause of concern to the family in Vedic and Upanishadic ages. On the contrary, we find that the Pridhandaka Upanishad prescribes a ritual for householder in the event of this desiring the birth of scholarly daughter। तो जो बृहदारण्यक का उपनिषद है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया रिचुअल को, और जो इवेंट हुआ था वो डिज़ायर करता है बर्थ ऑफ स्कॉलरी डॉटर को। इंडिड सम थिंकर्स इंडिकेटेड इन सामवेदा दैट बर्थ ऑफ अ टैलेंटेड एंड वेल बिहेव डॉटर माइट बी मोर वर्थफाइल देन अ सन। तो जो सामवेदा है उसमें बताया गया है कि टैलेंटेड और वेल बिहेव डॉटर को पहले प्रेफरेंस दी गई है सन के प्रेफरेंस है। In well-to-do circles, an accomplished and beautiful daughter was subject of pride। तो जो ब्यूटीफुल डॉटर है वो प्राइड का सब्जेक्ट हुआ करती थी। फिर जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी द कस्टम्स ऑफ ब्राइड प्राइस प्रिवेलेड एंड सो इट मे प्रिज्यूम्ड दैट अ डॉटर वाज नॉट अनवेलकम। तो जो लोअर सेक्शन सोसाइटी था वहाँ पर जो कस्टम ऑफ ब्राइड प्राइस मतलब एज अ जिसको हम बोलते हैं कि दहेज टाइप में दिया जाता था, और जो डॉटर है वो अनवेलकम की जाती थी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। उसके बाद देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट गर्ल्स वर एंटाइटल्ड एजुकेशन। तो वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले जिसमें गर्ल को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया गया। फिर वी नो दैट मैनी वुमेन बिकम रिन्यूड स्कॉलर्स लाइक गर्गी हु चैलेंज द यजुवल्का। तो जो गर्गी है उसने चैलेंज किया था यजुवल्का को। उसके बाद इन डिबेट एंड अर्थी हु वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदांता स्टडीड अंडर वाल्मीकि। उसके बाद जो अर्थी है जो कि ग्रेट स्कॉलर थी वेदांता की, उन्होंने स्टडी करी वाल्मीकि और अगस्त्य ऋषि के अंडर में। फिर वुमेन लाइक लोपमुद्रा, विश्वेश्वरा, शिक्ता निवन एंड घोषा वर अमंग द ऑथर्स ऑफ ऋग्वेदा ब्राह्मदिनी बोला जाता था किसी उसको, लोपमुद्रा, विश्वेश्वरा, शिक्ता निवावन और घोषा, हु परस्यूड स्कॉलरशिप फॉर रेस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है पूरी, है ना। उसके बाद देयर वर आल्सो नंबर ऑफ वुमेन पोएट्स फर्स्ट मिलेना वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। देवी एंड विजयंका आर बेस्ट नोन। जो देवी और विजयंका है ये एक पोएट थी, बेस्ट पोएट जिनको नोन जाना गया है। फिर वुमेन वर अलाउड टू रिमेन सेलिब्रेट्स। इंडीड सम ग्रेट वुमेन स्कॉलर्स रिनाउंस मैरिज इन ऑर्डर टू डिवोट देमसेल्फ फिनांस एंड सेल्फ रियलाइजेशन और इवन स्कॉलरशिप। तो कुछ वुमेन थे जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था और डिवोटी थी वो। तो वैदिक सोसाइटी डिड हाउएवर enjoin मैरिज एज रिलीजियस एंड सोसाइटी ड्यूटी। तो जो वैदिक सोसाइटी थी वो सोसाइटी के अनुसार मैरिज को एंजॉय करते थे और रिलीजियस ड्यूटी अपनी निभाते थे। इट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी। वुमेन इवन हैड द राइट टू चूज देयर पार्टनर्स। तो जो वैदिक पीरियड था उसमें
वुमेन को फोर्स नहीं किया जाता था उनके पार्टनर को चूज़ करने के लिए. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ डाउरी बीइंग गिवन टू वुमेन और डिमांडेड बाय मेंस फैमिली. तो वहाँ पर कोई भी डाउरी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जो कि डिमांड किया होगा किसी मैन की फैमिली द्वारा. अ फ्यू गिफ्ट्स वर गिवन एट टाइम कन्यादान एज चैरिटी. तो कन्यादान जो होता था एज ए चैरिटी के रूप में दिया जाता था. विद इन मैरिज वुमेन वर सपोज टू बी इक्वल पार्टनर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ धर्मा अर्थ कामा एंड मोक्ष. तो जो वुमेन है वो इक्वल पार्टनर मानी जाती थी किसमें, धर्म अर्थ कामा और मोक्ष में, जो कि गोल्स होते थे एक अटेनमेंट के. तो हाईएस्ट पोजीशन गिवन टू हर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ आधान अर्धान्नशिवरा अर्धान्नशिवरा वेयर शिव is considered half man and half woman. अर्धांगिनी शिवा है शायद. So love of Shiva and Parvati represent the highest deal of conjugal attachment. Society allow widow marriage and levirate. The fact soon after birth of Buddhism and women were allowed to join nunneries is again an indication of their status in society. तो ये जो हमारा वैदिक पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर हमारे यहाँ बुद्धिज्म में स्टार्ट हुआ है. तो बुद्धिज्म में क्या थी वुमेन की स्थिति कि जो आफ्टर बर्थ ऑफ बुद्धिज्म वुमेन वर अलाउड टू नन्नीज, मतलब वहाँ पर भी इक्वलिटी में माना गया था मेन और वुमेन को. अगर मेन एज अ मंक ज्वाइन कर सकते थे तो वुमेन भी नन्नीज की तरह ज्वाइन कर सकती थी. तो फिनोमेन गेव ग्रेटर इंकरेजमेंट टू फीमेल एजुकेशन. तो इनको इंकरेज किया गया था फीमेल एजुकेशन के लिए. द Jain tradition also speak of women giving up the worldly life and becoming साध्वी women. तो जो जैन ट्रेडिशन में है also बोला गया है कि जो गिविंग अप किया गया वर्ल्डली लाइफ को और बिकम साध्वी बनाया गया. तो वुमेन हैड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड सर्वल ऑफ देम रोज टू बी रिनोवेड टीचर्स एंड फिजिशियंस. तो जो साध्वी बना तो वो टीचिंग भी करते होंगे, फिजिशियंस भी होंगे. Many become dramatists, musicians, dancers. Participation in performing arts was considered a very respectable occupation. तो कुछ जो वुमेन्स थी वो ड्रामेटिस्ट थी, उसके बाद म्यूजिशियंस थी, डांसर्स थी, और पार्टिसिपेशन किया था आर्ट्स में, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन मानी जाती थी. इन लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी मोस्ट वुमेन वर्कड हार्ड at their livelihood through agriculture by manufacturing textile handicrafts. तो जो लोअर कास्ट होती थी उस समय तो उसमें वुमेन्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में और एग्रीकल्चर में आदि में अपना पार्टिसिपेशन देती थी. एज फार एज इकोनॉमिक राइट्स वुमेन आर कंसर्न ड्यूरिंग वैदिक एज हस्बैंड एंड वाइफ वर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट ओनर्स. तो जो वैदिक एज है उसमें हस्बैंड और वाइफ को जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें या इकोनॉमिक राइट होते थे उसमें इक्वल पार्टनर माना जाता था. फिर द हस्बैंड वाज रिक्वायर्ड टू टेक सोलमन ऑथ एट द टाइम ऑफ मैरिज दैट ही वुड नॉट हार्म हिज वाइफ राइट्स एंड इंटरेस्ट्स. तो जैसे आजकल जो सात फेरे लिए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की ऐसा बोलते हैं रिचुअल्स में कि वादे किए जाते हैं या ओथ ली जाती है, तो वैसे उस टाइम पे भी होता था कि जो हस्बैंड है वो ओथ लेता था कि वो उसकी वाइफ को उसकी वाइफ के राइट्स को और इंटरेस्ट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा. इन प्रैक्टिस वुमेन डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर जॉइंट प्रॉपर्टी एंड वर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट अफेयर इन रिलेशन टू इट. तो इस प्रैक्टिस में जो वुमेन है उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होते थे जॉइंट प्रॉपर्टी में, मतलब कि सिर्फ वुमन के पास ही नहीं होते थे जॉइंट प्रॉपर्टी राइट्स होते थे, मतलब कि दोनों को मिलाकर ही प्रॉपर्टी का राइट्स होता था. फिर द पोजीशन ऑफ वुमेन आफ्टर 8th to 9th century AD टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स ग्रेटर ऑर्थोडॉक्सी एंड कंट्रोल ऑफ वुमेन एज पोजीशन. तो 9th सेंचुरी के बाद वुमेन पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, उसके बाद वुमेन का रिप्रेशन सप्रेशन स्टार्ट हुआ. इन द वेदास द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन embryo was considered to be very sinful. The custom of female infanticide crept into some sections of society during the medieval period. तो जो custom of female infanticide है मतलब जो छोटा जो चाइल्ड होती थी अगर वो गर्ल होती थी तो उनका
इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता था। तो जो ये मिडाइवल पीरियड में, बट इट वाज confined largely to the lower it is the lower uncultured, very poor classes. There there too was considered to be abnormal behavior and rare occurrence. Most girls were deprived of an education unless they happened to be members of aristocracy or well-to-do business classes, or were born into entertainment professions, that is courtesans and dancing and singing girls. तो जो ज़्यादातर गर्ल होती थी उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था जब तक कि वो कोई अच्छे वेल डू बिजनेस क्लासेस से ना हो या कोई अच्छे ऊंची पोस्ट से ना हो. तो द कस्टम ऑफ अर्लियर मैरिज फर्स्ट मैनिफेस्टेड सेल्फ itself among the lower class member of which charge bribe price and therefore sought to marriage of their daughters at very young age. तो जो लोअर क्लास होती थी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती थी वो अच्छी नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि जो देते थे ब्राइड प्राइस देते थे, तो और वो वेरी यंग एज में उनकी शादियाँ करा देते थे. द पॉपुलरिटी ऑफ अर्लियर मैरिज इंक्रीज ड्यूरिंग the medieval period, stemming for the desire to protect girl children being coveted by foreign invaders. This custom mentioned by European travel monarchy and and Tavernier who visited India. Akbar's issue a flat that no marriage should be performed before puberty. It was, however, normal for girls to be married off एट एन एज बिटवीन 9 to 12. तो जो मिडावल पीरियड में बहुत नॉर्मल हुआ करता था कि 9 से 12 साल की उम्र में लड़कियों का शादी कर दिया जाती थी और जो ब्राइब प्राइस है वो चार्ज किया जाता था. बिफोर दे अटेंडेड पॉवर्टी right up to earlier 20th century, the question of marriage by choice did not arise. The custom of dowry remained as hetero. Of bride's parents voluntary gifting ornaments and occasionally cash to their daughters time of the marriage. तो जो अभी भी कस्टम ऑफ डायरी एज इट इज़ है और जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो वॉलेंट्री गिफ्ट्स और ऑर्नामेंट्स देते हैं ओकेजनली और कैश देते हैं उनकी डॉटर को. देयर वाज नो प्रायर नेगोशिएशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ गर्ल्स टू बी गिवन एट the time of marriage, nor was it demanded. The right to divorce and widow marriage seems to have almost disappeared in second millennia. तो right to divorce और widow marriage disappear था, ऐसा कुछ भी नहीं था second millennia में. Though occasionally such cases no one have occur, especially among the lower classes. In marriage, the obligation of fidelity was enjoyed on both parties along with love, care and mutual maintenance. The custom polygamy thought known earlier become common among the ruling classes. Purut came into existence under Muslim influence. A woman did not inherit her husband's wealth but was supposed to be cared for by son. तो जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी है वो इनहर्ट नहीं कर सकती थी, पर उनके सन प्रॉपर्टी को इनहर्ट कर सकते थे. The concept of mother being considered as scared worthy of worship continued from Vedic age and women had position of respect. तो वैदिक एज तक जो मदर थी उनको अच्छे तरह से पूजा जाता था और जो वुमेन की जो पोजीशन थी वो रिस्पेक्टिव थी. कहाँ तक? वैदिक पीरियड तक. There were many rishis like Vishnu Yajalunaka who recognized the right of a widow to her husband's property. This was occasionally practiced in south but rarely in north. तो जो राइट टू विडो और हस्बैंड प्रॉपर्टी मतलब कि जो विडो है उसका प्रॉपर्टी पर हक होता था. फिर दिस वाज ओकेजनली प्रैक्टिस इन साउथ, ये साउथ में प्रैक्टिस होता था पर रेयरली इन नॉर्थ में बहुत कम होता था. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन बिकम वेरी conspicuous
and it was supposed to consist not only of the gift received by woman at the time of her marriage, but whatever is given to her by her maternal and other relative during her married life. तो जो इट वाज सपोज टू कंसिस्ट नॉट ओनली गिफ्ट, तो ये गिफ्ट नहीं होता था और वुमेन के मैरिज के टाइम पर, बट उसको उसके मैटरनल और अदर रिलेटिव के द्वारा भी एक मैरिड लाइफ के लिए गिफ्ट दिया जाता था. मैनी ज्यूरिस्ट propound that husband's gift of landed property to wife also perform part of स्त्रीधन. तो जो हस्बैंड के गिफ्ट है और जो लैंडेड प्रॉपर्टी है वो भी पार्ट होता था स्त्रीधन का. हर राइट टू एलिनेट दिस प्रॉपर्टी by sale or gifting to her parents family was however challenged. तो उसका जो राइट था प्रॉपर्टी पर सेल करना और गिफ्ट करना उसके पेरेंट्स को, तो ये चैलेंज किया जाता था. इट द इफ द विडो डिड नॉट हैव चिल्ड्रन इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट शुड गो टू हस्बैंड्स कोलेटस. मतलब कि जो विडो के पास अगर कोई चिल्ड्रन नहीं होता था तो ये जो एक्सपेक्टेड था कि हस्बैंड के किसी और रिलेटिव के पास चले जाता था. द कस्टम्स ऑफ सती फर्स्ट मेंशन्ड अमंग ब्राह्मणीज बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट बट वाज नॉट ओनली कंसिडर्ड द वाइफ रिलीजियस ड्यूटी. तो जो कस्टम ऑफ सती है वो मेंशन किया गया ब्राह्मणीज में बिफोर क्राइस्ट, बीसी के पहले. तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको बीसी. सम वुमेन ओवरकम विथ ग्रीफ वॉलेंटरी कमिटेड सुसाइड बाय थ्रोइंग देमसेल्फ ऑफ देयर डेड्स हस्बैंड्स फनरल पेयर लाइक मद्री द वाइफ ऑफ पंडू द फादर ऑफ पांडवास एज मेंशन्ड इन महाभारत. तो महाभारत में जैसे मेंशन किया गया है कि जो मद्री थी जो कि वाइफ ऑफ पंडू थी, उन्होंने खुद को अपने हस्बैंड्स की फनरल में थ्रो कर दिया था, जिसको कमिटेड सुसाइड बोला गया. द क्षत्रियस डिड नॉट फॉलो दिस बिकॉज द अनसर्टेन एग्जिस्टेंस वुड हैव meant a lot of children widows. After the 18th century this custom becomes much commoner. 18th century के बाद ये जो कस्टम से कॉमन हो गया. इन कश्मीर we even hear of mother, sisters, servants and ministers committing sati with the rules in Rajat Rangini. Contemporary literature of Banna, Kalidas and Bhasha shows that it was popular among royal families. This custom was also commonly practiced in Rajasthan by women, royal family and many others. बाद में जो कस्टम्स है ये रॉयल फैमिली और दूसरी पार्ट्स में भी होने लगा. Also among Nayaks in South India by 17th and 18th century this custom was also occasionally practiced by lower classes इन नॉर्थ इंडिया. बाद में नॉर्थ इंडिया में लोअर क्लासेस में प्रैक्टिस होने लगा. नो स्टेज ऑफ इंडियाज हिस्ट्री was sati common practice and was certainly nowhere near universal. We have some figures from 1815 to 1828 indicating it was minuscule. Throughout the medieval period there were exceptions to the rule as far as the lower status of women was concerned. In many princely families both women Muslims and Hindus women were highly educated. तो जो वुमेन और हिंदू में मिडाइवल में पता चला कि जो हाईली एजुकेटेड होती थी took part governing their states during minority of their children. तो जब उनके बच्चे छोटे हुआ करते थे तो वो अपने जो स्टेट में है गवर्निंग को लेकर पार्टिसिपेट करते थे. This has happened frequently in Jaipur state. Women took interest in the defense of their husbands. State we have example of celebrated Tara, wife of Prithviraj, and here apparent the throne of Chittor. मतलब जो वाइफ थी तारा जो जिसने पृथ्वीराज चौहान के बाद थ्रोन पर बैठी थी चित्तौर पर. Who lost her लाइफ इन बैटल विथ मुस्लिम्स रूलर, जिसने अपनी लाइफ खो दी थी मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ लड़ाई में. अपर क्लास वुमेन ओकेजनली एक्सरसाइज देयर राइट टू चॉइस इन सेक्शन देयर हस्बैंड. इन 17th century there was a
famous case of Charumati of Kishangarh in Rajasthan, who was betrothed to Aurangzeb by her brother, but who refused to marry him and instead sent a message to Maharaj Raja Singh of Udaipur to rescue and marry her. तो जो औरंगजेब और उसके भाई के द्वारा जो फोर्स किया गया था, देयर वाज फेमस केस ऑफ चारुमती किशनगढ़ इन राजस्थान हु वाज betrothed to Aurangzeb by her brother and but marry him instead of send message of Maharaja Raj Singh of Udaipur to rescue and marry her. We also have evidence of women scholars both Rajasthan and throughout the rest of the country, like famous poetess Mitra of Chittor and of Adnal of the south. Among the Muslims, we find highly cultivated Nurjahan, Mumtaz Mahal, Jahanara Begum, and Roshanara Begum taking the great interest in charitable works. तो एविडेंस मिले हैं जहाँ पर कि जो नूरजहाँ, मुमताज़ महल, जहाँआरा बेगम, रोशनारा बेगम ने पार्टिसिपेट करा है चैरिटेबल वर्क्स में इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराइस और रेस्ट हाउस बाय रोड साइड. जो सराय होते थे, जो रेस्ट हाउस होते थे साइड में, रोड साइड में, उनका जो कंस्ट्रक्शन है इन लोगों ने करवाया था. इन फीडिंग दी पूर एंड इन कंस्ट्रक्शन मॉस्क्यूज, मौसलम्स एंड गार्डन्स. और जो पोर के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था, जैसे कि जो फीडिंग को पोर करते थे ये, और कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्टिंग में जो भी मॉस्क्यूज और मोसलम्स होते थे, गार्डन्स होते हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन करवाया इन लोगों ने. सो दैट इज़ फ्रॉम मिडाइवल. अब हम मॉडर्न पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. So and please do subscribe my channel, Exam Spartan. Thank you.